Hello, guys, welcome to Tarot with Snigdha. And thank you so much if you have already subscribed my channel, and if you are watching this video first time and you find this video helpful, then please subscribe to my channel, share my channel with your friends and family, and I hope that it is going to benefit them as well. Okay, so today I am doing this career reading for the upcoming month of November 2020, and this reading will give you a guidance about the coming month and how you can proceed in your career, in your job, in your business, like whatever way your profession. Okay, so what you should do, how you should act, or what you can, how you can express yourself, and how you can achieve your goals. So this reading will be done in Hindi as well as English. So I will be putting the timestamps of both. First I'll do Hindi reading and then in English for each pile, and I'll put a timestamp so you can directly go to the Hindi part or the English part corresponding to the particular pile. नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेरो विद स्निग्धा में। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिलेगी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग्स ले सकते हैं, एंड आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। वहाँ पे सेल्फ हेल्प की पोस्ट रहते हैं, एंड बहुत सारे सेल्फ लव के ऊपर रहते हैं, एफर्मेशंस रहते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, बट अंदर से जो आप रेडिएट करते हैं बाहर, उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से भी खुश नज़र आएंगे और उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। तो आई होप आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करेंगे। एंड अब मैं रीडिंग के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीडिंग दूंगी। तो हर एक पाइल के लिए मैं पहले हिंदी में रीडिंग दूंगी, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में रीडिंग दूंगी, एंड मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में दोनों में डाल दूंगी। तो आप डायरेक्टली क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल पे एंड उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम ब्लेसिंग्स लेंगे एंजल्स की और भगवान की और यूनिवर्स की कि हमें गाइड करें और आने वाले मंथ में हमें सब कुछ दें और हमें उस सही डायरेक्शन में लेके जाएं जहाँ पे हम डिज़र्व करते हैं जाना और जो हमारा पर्पस है। मैं आज इस क्रिस्टल का यूज़ कर रही हूँ। ये क्लियर क्वार्ट्ज है और ये क्रिस्टल मुझे क्लैरिटी देगा ताकि मैं जो भी रीडिंग आपको दूंगी तो वो बहुत क्लियर होगी। So today I will be using this clear quartz crystal. So this crystal is going to give me clarity. Okay, so clarity with which I can give you an accurate reading. Okay, so this is surely going to help me give you an accurate reading. So I will be keeping this in my hand most of the times so that I am directed in the right direction, and angels and God and universe is going to guide me. Okay, so let's begin the reading. So first what you have to do is you have to relax yourself, you have to calm down, and you have to take deep breath in and deep breath out so that any kind of stress, any kind of anxiety which is there inside you regarding anything which is blocking you towards your success, just release it. Just with every exhale, just release that energy, and one by one look at these three turtles. Okay, so the turtle is symbolic of slow and steady wins the race. So today's theme is that slow and steady wins the race. So definitely if you want to achieve success, slowly, gradually and steadily, with all the hard work and efforts, with required skills, you can definitely achieve success in life.
and whoever puts in good amount of effort and consistent amount of efforts, God and universe and angels are always there to bless that soul with abundance, prosperity and success. Okay, so दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेट करना है इन 3 टर्टल्स पे. ओके, आपको अपने आप को एकदम शांत कर लेना है, अपने मन को एकदम शांत कर लेना है. और किसी भी तरीके का अगर आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, किसी भी तरीके की बेचैनी है या किसी तरीके का डर है जो आपको अपने सक्सेस की तरफ से एक तरीके का ऑब्स्टेकल है, एक तरीके की रुकावट है जो आपके रास्ते में है, अगर आपको उसको लेके डर है या किसी तरीके का स्ट्रेस है कि आने वाला कल कैसा होगा, बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और मुझे पता है कि सब लोग बहुत स्ट्रेस में हैं कि अगले साल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, कब क्या कैसे होगा, क्योंकि मेरे को ये प्लान्स थे, मैं ये करना चाहता था या करना चाहती थी एंड मैं नहीं कर पाई, या कोरोना की वजह से मेरे जो प्लान्स थे वो सारे चौपट हो गए. अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लें, अपने आप को एकदम काम, कूल, कंपोज्ड कर लें, एकदम शांति, एकदम डीप ब्रेथ इन लें. ठीक है, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें. और जब सांस छोड़ेंगे तो ऐसे सोचिए कि सारा का सारा स्ट्रेस जो इस वक्त आपके दिमाग में है, इस वक्त आपकी एक ऑरा को एक तरीके से ब्लॉक कर रहा है, आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है, उसको आपको थोड़ी देर के लिए रिलीज करना है और मेडिटेट करना है. और फिर इन तीनों टर्टल्स में से कोई एक टर्टल आपको पिक करना है. So the first turtle is the flower turtle. Okay, so I will show you this turtle. Okay, ये flower turtle है. टर्टल्स जो होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि धीरे और पूरी, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने गोल्स की तरफ जाते हैं, जो आपने अपने लिए लक्ष्य साधे होते हैं, अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आप उन लक्ष्यों को अचीव करते हैं. ओके, नाउ द सेकंड टर्टल इज द रॉयल ब्लू टर्टल. ओके, एंड द थर्ड टर्टल इज द स्टार टर्टल. तो ये तीसरा टर्टल है, ये हमारा स्टार टर्टल है. अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको चुन लीजिए. अगर आप रॉयल ब्लू टर्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसे चुन लीजिए. अगर आप ये फ्लावर टर्टल जो है इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसे चूज कर लीजिए. इन तीनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर टर्टल चूज करना है, आप उसको चूज कर लीजिए. और टाइम स्टैम्प आपको दिया रहेगा, आप सीधे उस टाइम स्टैम्प पे जाके हिंदी या इंग्लिश के वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, टाइम स्टैम्प इज ऑलरेडी देयर. सो लेट्स बिगिन with the first turtle, that is the flower turtle. Okay, so I'll keep aside all the other cards. So I wish that the coming month of November is very helpful to you. आप लोगों के लिए आने वाला महीना बहुत अच्छा हो. हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे सब कि आप लोगों का आने वाला नवंबर का जो महीना है, वो जो साल में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी आपकी रिजॉल्व हो जाएं और आपको प्रगति मिले और आपको सक्सेस मिले. अमेजिंग रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग है. और मैं जो कार्ड्स का यूज़ कर रही हूँ वो आज ड्रूइड का क्राफ्ट है, एंड दूसरा है मॉडर्न विच, और तीसरा है मेरे एफर्मेटर कार्ड्स. ओके,
तो मैं 3 टाइप के डिफरेंट कार्ड्स का यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों को रीडिंग दूंगी जो आपकी मदद करेगी। तो पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि शायद इस वक्त या पहले के कुछ आप कह लीजिए महीने या फिर कुछ दिनों से या फिर कुछ हफ्तों से जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे थे। मतलब एकदम होता है ना कि दिन रात सुबह शाम बस आप किसी ना किसी सोच में हैं और वो सोच आपकी बस ये रिवॉल्व करती है कि अब मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे वो करना चाहिए, कि अब मेरा स्टेप ये होना चाहिए, कि मेरा स्टेप वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी प्रोग्रेस से या अपने करियर से या अपनी सक्सेस से या जो भी आपने अभी तक अचीव किया। आपको लगता है कि नहीं, ये इतने में नहीं होगा एंड मैंने लाइफ में भी वो सब अचीव नहीं किया है जो मुझे करना चाहिए था। फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि आपने अपने बचपन में या फिर अपने जो ग्रोइंग फेज़ है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों को झेला है, काफ़ी कुछ चीज़ों से आप बाहर आए हैं और उन सब चीज़ों ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। एंड जो भी कुछ हुआ था वो डेस्टीन्ड था, वो डेस्टिनी में था, वो सब यूनिवर्स को चाहिए था, वो सब भगवान को चाहिए था और वो सब इसीलिए हुआ। और वो इसलिए हुआ ताकि आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तो जितने आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस अभी तक हुए हैं, जितने हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आए हैं, जितने फेलियर्स आपकी लाइफ में आए हैं, इवन जितनी सक्सेस आपकी लाइफ में आई है, जितने लेसन्स आपने इस लाइफ टाइम में अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भलाई के लिए है। वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उस पर फोकस करने के बजाय, जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई पास्ट में, उन सब चीज़ों पे फोकस करने के बजाय, उन सब चीज़ों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये सरेंडर कार्ड आया है एफर्मेटर्स का। तो जो सरेंडर कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको छोड़ देनी होती हैं, जो समय के साथ एक डिवाइन टाइमिंग के साथ ही प्ले करती हैं। जो एक करेक्ट टाइम जब आता है किसी का तो वो तभी होती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए अभी से इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो पास्ट में हो चुका है वो अभी तो फ़िलहाल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। और जो फ्यूचर है वो आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप प्रेजेंट में अगर फ्यूचर के बारे में चिंता करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटर है कि प्रेजेंट को ही अच्छा बना लें और फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़, मतलब जो मुझे फर्स्ट जो ये लाइन है उसे जो मुझे समझने को मिला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके अंदर बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आने वाला है। आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बिकॉज ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि नए नए आइडियाज़ आएंगे। इवन आपके वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बता रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके साथ। अब आपका अच्छा टाइम आने वाला है। जिन लोगों को अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत हार्डशिप्स से गुजरे हैं, ये समझ जाइए कि नवंबर मंथ आपके लिए एक ऐसा कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला मंथ रहेगा। ऐसा मंथ रहेगा जब आपकी अचानक से चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं थी वो सब आपके लिए होने लगेगा। एंड आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आप भी सोचेंगे यार ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और पहले आपने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आप अपने आप को ब्लॉक करके रख रहे थे, अपने थॉट प्रोसेस को ब्लॉक करके रख रहे थे।
उसको रिलीज कर दीजिए, और अपने आप जब क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी, अपने आप माइंड में आइडियाज आएंगे और आप अपने जो सक्सेस है, अपने गोल्स हैं, उसको अचीव कर लेंगे। और अचीव क्यों करेंगे? क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आया है। ओके, सो अबंडेंस का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके पास एक कुआं है, ओके, उस कुएं में बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है, और वो कुआं आपके पास है। तो हर बार जब आपको कुछ चाहिए, कोई ऐसी गाइडेंस चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वो कुआं ऑलरेडी दे चुका है। तो उस कुएं से आपको एक एक करके आइडियाज मिलते जाएंगे, आप अपनी सिचुएशन से निकलते जाएंगे, आपको अपने सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। और नवंबर में आप ये चीज़ डेफिनेटली फील करेंगे। जो मैं बोल रही हूँ वो आपको तब नवंबर में समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही थी। ओके, सो आई होप कि आपका नवंबर का जो महीना है वो बहुत अच्छा जाए और आपके पैसे और आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाए। अगर आपको कोई प्रमोशन चाहिए तो आपको वो प्रमोशन मिल जाए, अगर आपको प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं अपने बिजनेस में तो वो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, बिकॉज अबंडेंस कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। नवंबर का महीना, इस पूरे साल में आप ऐसे ईयर मार्क कर लीजिए कि ये महीना तो आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, एंड अपने दोस्तों से और अपने परिवार के लोगों से भी मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिले। So now I'll start the video in English. So the first thing which I noticed in this reading is that the people who chose our flower turtle, they are more focused upon things which have happened in the past, things which they don't have in present, and most of the time they're wasting their energies on overthinking, on maybe getting stressed out of it, and maybe getting anxious like what will happen in the future. So most part of your life, I can say right now, is focused upon what you don't have. Okay, so I would suggest you to stop overthinking. Okay, and second thing which I have noticed in this reading is that you have faced lot of hardships in your life, you have gone through hell and you have come out of it. You are a very very strong personality. When you have already come out of so many hardships, I don't know why you are overthinking. Okay, and why are you thinking like that okay, I would have changed this particular thing, or I should have reacted in this particular thing, or I should have gone for that particular job, or I should have implemented that particular idea in my business. Why are you overthinking? Okay, so just stop overthinking about your past, because past is past, and right now you have to just live in the present and you have to make your present beautiful and fruitful. Okay, the third thing which I have got the message from the angels is you have to surrender everything. Okay, so you have to surrender yourself, surrender the control of everything. Okay, so I'll read it out. I surrender control and allow every brainchild to be exactly what it is. I don't push them or pull them or force them into well-starched neckties. I let them forge their own path. Okay, turns out brain children are a lot like real children. So what it is going to tell you is that your thoughts and everything should be just, they should be running on their own, and you should not try to control each and everything. Same way, you should not try to control what is happening in your career, okay, in your job, in your workplace, in your business. No need to try to control each and everything or each and every person around you or in your team. No need to do that. Just surrender yourself, relax yourself, release everything which is blocking you. Okay, so the future, or we can say what is going to happen in November, is that you will get lots and lots of ideas. Okay,
So Ace of Swords is telling me that you will be more clearer in your thought process. You will have many ideas in your mind, and you will implement those ideas one by one, and you will achieve success. Then the second thing is Wheel of Fortune. So Wheel of Fortune is telling you that everything is happening according to the divine timing. So God has planned something for you, and God is going to provide you. Okay, so don't worry about it. Okay, sometimes things might go in not the same sequence as you had planned or you had thought of, but definitely the things which you really which are meant for you, you are going to get them, achieve them. So what you deserve, you are definitely going to get them. And I see lot of changes happening in November. Whatever kind of blockages were there in the previous months or previous days, the whole year might have not been that fruitful, but I can assure you that November is going to be the best month for the entire year for you, and abundance is on the way. So November is going to open the doors of abundance for you. I celebrate the abundance of this wild, rambling, decadent universe we live in. Okay, so our universe is very abundant, and universe is going to provide you what you are going to manifest, what idea you are going to get from this Ace of Swords. Same thing is going to happen to you. Okay, so I think that the month of November is going to be awesome for you guys, and I hope that you get what you desire. Thank you so much for being there, and if you haven't subscribed yet, then do subscribe, and my Instagram handle is also there in the description. So please follow me on Instagram, and you can also DM me for any personalized reading. Thank you so much. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड पाइल से, सेकंड टर्टल से. तो जिन लोगों ने भी हमारा रॉयल ब्लू टर्टल सिलेक्ट किया था, अब हम उनके लिए रीडिंग करेंगे. ओके गाइस, सो हम प्रे करेंगे भगवान से कि आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, और इनफैक्ट उससे ज़्यादा सब कुछ मिले. बस आपसे एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें. ओके, आई कैन टू, जैसी मेरी नज़र पड़ी आई कैन टू में, तो मुझे जो अंदर से एक गाइडेंस मिला है वो ये है कि आप अपने आप को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. ओके, तो अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हैं, एंड आप ऐसे हैं जो देर रात तक भी काम कर सकते हैं, लगातार घंटों घंटों काम कर सकते हैं, एंड आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपके गोल्स कहाँ हैं, वो सब पूरी क्लैरिटी आपके पास है. बट एक चीज़ जो आपके अंदर है, जो आपको ब्लॉक कर रही है, या कहेंगे कि जिसकी मतलब कमी है आपके अंदर, वो है थोड़े से कॉन्फिडेंस की. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए. मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ. कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने हार्ड वर्किंग हैं. हार्ड वर्किंग क्यों है, आप पूछेंगे कि आप कैसे बता रही हैं. बिकॉज ऑफ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स. इस 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे पता चल रहा है कि आप पहली बात तो बहुत स्किल्ड हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप बहुत रिसर्च करते हैं. अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई चीज़ बनानी है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप उस पर घंटों घंटों रिसर्च करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे. ठीक है, आप उसमें दिन रात एक कर देंगे, बट आप मेक श्योर करेंगे कि आप परफेक्शन के साथ वो काम करें, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट भी हैं. ओके, मेहनती हैं, परफेक्शनिस्ट हैं. बस थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी है,
जो कि डेफिनेटली नवंबर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। अब आपने ये अगर रीडिंग देख ली है तो आपको गाइडेंस मिल गया है कि आप डिज़र्व करते हैं अपने आप को ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना, वो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाला है और नवंबर में आपको या तो वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको प्रॉफिट मिलेगा या उसका कुछ आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट अभी तक चला आ रहा था जिसमें आपने बहुत 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 मेहनत लगाई थी, या कोई हो सकता है एग्ज़ाम आप दे रहे थे जिसकी आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे थे, घंटों उसके लिए बैठ के आप तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा बिकॉज आप क्लियर कर लेंगे वो एग्ज़ाम। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए नवंबर 2020 में। तो अगर कोई एग्ज़ाम भी आपका पड़ता है नवंबर 2020 में तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ये पक्की बात है कि आपका क्लियर होने वाला है एग्ज़ाम। ओके, अब एक चीज़ जो है वो है कि आप अपने वर्क प्लेस में, ठीक है, या फिर अगर आप अभी कॉलेज में हैं एंड अभी आप देख रहे हैं, तो एक चीज़ है कि आप उन लोगों में से हैं जो बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। आप काम में अपने इमोशंस भी डालते हैं क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट भी हैं, ठीक है। तो आप थोड़े इमोशनल भी हैं और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, लोग आपके पास आते हैं सपोर्ट के लिए क्योंकि आप उनको वो सपोर्ट देते हैं। इवन नवंबर में आपसे मदद के लिए आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन आ सकते हैं कि आप मुझे गाइड कर दीजिए कि मुझे कौन से करियर की तरफ जाना है। तो मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं कि लोग सोचते हैं कि यार मैं इसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो ये डेफिनेटली मुझे अच्छे से गाइड करेंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप ये सोचें कि आपको लोग उस काबिल समझते हैं, उन्हें पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है बिकॉज आप बहुत रिसर्चफुल हैं। आपको चीज़ों के बारे में पता होता है कि कौन सी चीज़ कब है, क्या है, अच्छी है, बुरी है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होती हैं एंड आप दूसरों के लिए एक तरीके से मैं कहूँगी इंस्पिरेशन भी है बिकॉज उन लोगों को लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है एंड आप उनको सही दिशा में ले जा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ और मुझे जो लास्ट में जो नज़र आ रही है कि आपके वर्क प्लेस में, कॉलेज में या बिजनेस में आप क्या कहते हैं, हो सकता है कि आपको कोई पसंद आ जाए या फिर अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाने वाली है, मतलब आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। तो जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी लाइक जॉब में हैं या कुछ, तो आपका हो सकता है कि कोई अफेयर चले आपके वर्क प्लेस में। ऐसा हो सकता है कि आपको हो सकता है कोई अप्रोच करे, कोई प्रपोज करे या आपको कोई अच्छा लगे, ऐसा मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ दी लवर्स का। ओके, सो इन ऑल आप लोग का नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जो आपने जितनी मेहनत करी है ना, पूरी आपकी सफल होगी और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। नवंबर का महीना आपका बेस्ट महीना जाने वाला है। ओके, सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। Okay, so now I will give the reading in English. So the first thing which I can see is that you are a perfectionist. Whatever you do, whatever work you take into hand, you will put more efforts into that particular work and you will do your research. Okay, your research will be maybe it might take days or months, but you will do that particular job with full perfection. Okay, you are someone who is a person with a researchful mind. Okay, a person who is very hardworking, who puts the amount of effort which is required, the maximum effort which a person can put.
you are very knowledgeable, you have got all the skills, okay, and whatever project you have been working on, okay, so this November you are going to complete that particular project and you are going to reap the benefits of that project. So if you are a business person, then you are going to get profit from that particular project. If you are a student and if you are someone who had maybe given some exam or interview, so you are going to get selected, okay, or you are going to clear the exams. So it is going to be a very beautiful month. November is going to give you good news, that is for sure. And only thing which is missing in you is a little bit of confidence, okay. So sometimes if you are not confident, so you are not able to present yourself the way you should, okay, because you are someone who knows many things, okay, and who has got more knowledge than other people. If I compare with the people on the same level as you, so you have got more knowledge, you have got more you do more amount of hard work, so I think you deserve to be more confident, okay. So that is what I would like to suggest you, okay. So you have to just tell yourself that you can too. So okay, I can too, that is the affirmation, and definitely you will, okay. Then what I can see is that people approach you because you are someone who is very knowledgeable, who has got lot of experience, who has done his or her research very well. You know about multiple things, okay, you have a vast arena of knowledge, and people come to you for guidance, okay. So they will ask you, okay, whether I should go for this particular job, whether I should opt for this particular career, or whether I should implement this particular idea. So that kind of guidance people ask you, okay. They come to you, they ask you about it because you are someone who is very supportive, very emotional also, because you are also a perfectionist and you put your emotions into your work, okay. So all the very best. And one more thing which I have observed is that if you are someone who is a businessman and if you want to go into any kind of partnership, so definitely in the month of November your partnership will be very fruitful to you because the lovers card came up. And for the other people, if you are a student, you are working in a job, I feel that some kind of love affair is going to start, and either you will like someone in your workplace, or maybe you will be approached by someone and someone might propose you. So anything might happen. Let's see what happens, okay. And do comment if this reading resonates with you. Do share my channel and do subscribe to my channel, and also follow me on Instagram. You can DM me for any personalized reading, guys, so I can give you an astrological analysis as well as the tarot analysis, so it will be more and more accurate reading. ओके गाइस, अभी हम लास्ट फाइल पे अपनी चलेंगे। तो जिन्होंने भी हमारा स्टार टर्टल चूज़ किया था, अब हम उनके लिए रीडिंग करेंगे। एंड आई होप आपका आने वाला जो महीना है नवंबर का, उसमें आपको गुड न्यूज़ मिले, वो आपका अच्छा जाए महीना। तो अब मैं पिक करूँगी। ओह, सक्सेस, पहले ही सक्सेस कार्ड आ गया, तब तो पक्की पक्की सक्सेस है। द हायरोफेंट, द स्टार, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका ये साल का। जो एंड के महीने हैं वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ओके। ओके, सो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि पास्ट में क्या हुआ था कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस मिले होंगे, या आपको बहुत मतलब सक्सेस मिली थी, एंड पर आपने मतलब कि क्या हुआ कि एक होता है ना कि बंदा
बहुत कह लीजिए कि कभी कभी बोर सा हो जाता है एक ही टाइप के रूटीन से या जो भी है, तो आपने आई थिंक उससे थोड़े दिन ब्रेक लिया था, ठीक है, क्योंकि ब्रेक द रूटीन वाला भी कार्ड आया है। तो ब्रेक द रूटीन वाला कार्ड जो आया है, अगर आपने ऑलरेडी ब्रेक किया था अपना रूटीन, देन इट इज़ वेल एंड गुड, तब तो आपको कुछ भी अभी ब्रेक नहीं करने की ज़रूरत। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करते आए हैं और आप बहुत मतलब कि अपना हार्ड वर्क पुट इन कर चुके हैं एंड सक्सेस भी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है नवंबर में, तो आप कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं उससे आपका जो फिजिकल बॉडी है और जो मेटाफिजिकल बॉडी है, दोनों बहुत थक चुके हैं एंड वो एक ब्रेक मांग रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्रेक दे चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है तो डेफिनेटली आपको थोड़े दिन का, 2-3 दिन का ही दे दीजिए, पर एक ब्रेक ज़रूर दीजिए अपनी बॉडी को, बिकॉज आपकी बॉडी वो ब्रेक मांग रही है। और क्रिएटिविटी को पनपने के लिए एक ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी उतनी ही रहे, आपका दिमाग उतना ही तेज चले और आपको सक्सेस आगे भी मिलती रहे, तो अपने रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक करिए, ताकि जब आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, वो बहुत अच्छे से आपके साथ और मतलब अबंडेंट ऊर्जा मिले और ज़्यादा ऊर्जा आपके पास आएगी। सो दूसरी चीज़ है कि आप अपने मतलब वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ओके। तो अगर आप बॉस हैं तो आप अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप मतलब कि एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं, और जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें चलती हैं वैसे वैसे मतलब चलती जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने सोचा कि ये पर्टिकुलर दिन पे मुझे ये काम करना है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत मतलब चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है। तो देखिए, एक चीज़ जो है कि आप मतलब एक रूटीन फॉलो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट अगर कभी कभी नहीं भी होता है तो परेशान मत हुआ करिए, उसका स्ट्रेस मत लिया करिए, या फिर कभी उसका गुस्सा और लोगों पे मत निकालिए। कभी कभी होता है कि बंदे, चलो आप अपने वर्क प्लेस में वो गुस्सा नहीं निकालेंगे, बट आप अपने परिवार वालों के साथ वो गुस्सा निकालें, उनके ऊपर निकालें, तो वो मत करिएगा। बस मतलब मेरा एक जो पॉइंट है, आप अपना डेफिनेटली स्केड्यूल करिए फॉलो, बिकॉज अगर सक्सेस चाहिए तो आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, छोटे छोटे अपने सब प्लान्स बनाने पड़ते हैं और उनको भी आपको फॉलो करना होता है, और उनको सही टाइम पे उनको मतलब क्या कहेंगे कि कवर करना है, और कहेंगे कि टिक मार्क करते जाना है कि हाँ मेरा ये ख़त्म हो गया, फिर ये ख़त्म हो गया, ये मतलब एक स्केड्यूल के हिसाब से चलना है। बट उसको इतना भी स्ट्रिक्ट मत बनाइए कि आपके साथ वाले लोगों को थोड़ा घुटन घुटन सी फील हो, तो वैसा वाला मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लूजन अप हो जाएंगे। फिर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और नवंबर में भी आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपके मतलब एक जो आप सोच रहे थे ना कि मेरे को ये करना है, ये बस चाहिए, तो बस उसके पीछे भागते हैं एकदम, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा पेस थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर लिया करिए, क्योंकि आप ना फिर ज़्यादा ही कर लेते हो, मतलब आपको अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये मतलब मुझे गाइडेंस जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है। आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करेंगे, क्योंकि सक्सेस कार्ड आ चुका है, तो ये तो मुझे बता ही रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। बट सक्सेस मिलेगी उसके लिए इतना भी परेशान मत होइए कि अपनी हेल्थ को आप अफेक्ट करें। आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी सक्सेस आपको मिलेगी, बट आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई और उसके साथ आपको सक्सेस मिले, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करिए, ओके। देन आपका ये जो स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी जो विशेस थी वो एकदम मतलब कि हो सकता है कि आपको कुछ महीनों से या कुछ 1 साल 2 साल से कुछ आप चाहते थे, तो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। एंड दूसरी चीज़ है, आप इस स्टार की तरह एकदम जैसे होता है ना कि आप टिमटिमाएंगे, मतलब आपको एप्रिसिएशन मिलेगा,
एक तो आपकी विशेस सच होंगी और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और लोग आपको जानेंगे, ठीक है। आपके आसपास के लोग, अगर कोई सपोजिटली आपको नहीं जानता था तो वो भी आपको जानेगा। लोग आपकी बहुत बड़ाई करने वाले हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। ओके, सो नवंबर का महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन जिन बातों को मैंने आपको बोला आप उनका ध्यान दीजिएगा। एंड आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग आपसे मैच हुई। ओके, एंड अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे पक्का से फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो वो बहुत एक्यूरेट होगी, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी मिला के दूंगी तो वो और ज़्यादा एक्यूरेट होती है, वो और ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। ओके, so thank you so much. Okay, so now I'm going to start the reading in English. So first thing which I'm seeing is that you are someone who follows a very strict routine, and sometimes that routine is very suffocating for people around you who are there in your workplace, your colleagues, or maybe your subordinates, or maybe your boss. So sometimes what happens is that they feel that okay, you are overdoing few things, or you can just, you know, your pace you can slow down because it might affect your health. Okay, so that is what I'm getting, and definitely success is going to come your way because of this success card. Okay, so it is telling me that success is definitely coming your way, and you might have broken your routine, maybe currently or maybe in the previous days or previous months. If you have already done that, it is good, but if you have not broken your routine, then universe and angels and God is telling you to break your routine. So I'll just read out. What are the enemies of creativity? Apathy, boredom, routine, and I suppose fascism, but that's a different conversation. Time to ditch those blah-inducing bedfellows and throw a little spice in your soup. If you paint, try painting in the dark or with a foot. Okay, so it is telling you that you have to be more creative, and whatever routine you were following, you have to break that routine. If you write, do so in a forest or in a field or a bathroom full of nature pics. Okay, so you have to definitely do something which is out of your comfort zone, or something which is more creative. Okay, no matter the medium, you can make your makings make your day. Okay, so it is a very beautiful message. Get your dabble on with different materials, genres, even art forms. Okay, how else is that theremin ever gonna get played? Okay, so the angels are telling you to break your routine. So whatever you like to do, whether it is painting, whether it is cycling, whether it is gardening, whether it is playing music, listening to music, dancing, whatever it is, you have to just do that. You have to break this routine of continuous, you know, working in your workplace, and only one thing you are doing is that you are just putting in efforts in your workplace, and you are only focused upon your work, your career. Okay, so for some time you have to break the routine. Okay, the next thing is that in the coming month of November you will be full of energy, you will have lot of energy, and you are going to use that energy into your work, and people are going to appreciate you because you will be the star. Okay, so you will be like this star, you will shine in your workplace, people are going to reward you, they are going to appreciate you for your efforts, whatever efforts you had put in, they are going to appreciate you because you are someone who is very dedicated person. Okay, so they are going to definitely praise you for your dedication. And one more thing is that your wishes are going to come true in the month of November, that is for sure. Starting from the month of November, there will be few things which
whatever you dreamt of or whatever you wished for, those things are definitely going to come true. Okay, so it is going to be a very, very beautiful month, the month of November, and I hope that this reading resonated with you. If it did, then please comment, please subscribe to my channel, please share my channel with your friends and family. And if you are not following me on Instagram, then please connect with me on Instagram and also do a personalized reading. I also do a personalized reading. And if you are interested in a more accurate reading, in which I also give astrological analysis, then you can come ahead, you can DM me on Instagram, and I will provide you a very thorough and accurate reading. And I hope that the coming month is very beautiful, very successful for all of you. Thank you so much for being there. Namaste.